नमस्ते सर। हमेशा खुश रहो बेटिया। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माई सेल्फ JDN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, in Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Chennai. In today's lecture, we are going to discuss about the different sources of Materia Medica. Materia Medica has always been an interesting subject for you, but it is always very confusing to remember all the symptoms of a particular medicine. Because we have to study lot of medicines. कितनी सारी मेडिसिन पढ़ते हो आप फाइनल ईयर तक आते आते? फर्स्ट ईयर में कितनी मेडिसिन थी? 50 थी। हाँ, सेकेंड ईयर में 78। ये 80 मान लो, है ना? तो 130 हो गई। नहीं थी ना बेटा, तो फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम ही नहीं था आपका। सेकेंड ईयर में एग्जाम हुआ था तो 50 आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी और थर्ड ईयर में 78, तो ऑलमोस्ट 130 मेडिसिन हो गई, 128। और फिर फाइनल ईयर में कितनी पढ़ोगे? 122 तो 130 और 122 50 ऑलमोस्ट मेडिसिन आप पढ़ेंगे। तो अराउंड 250 मेडिसिन यू आर गोइंग टू स्टडी, और 250 medicines में बहुत सारे symptoms है। There are lot of symptoms, hundreds of symptoms in each medicine. So how to remember the medicine? किस तरह से medicine को याद किया जाए और उसे apply किया जाए? Because whenever you will start your practice, you must have seen the homeopaths, the other physicians, how they are practicing. Most of the physicians are having some favorite medicines or some of the group of medicines that are repeatedly being prescribed by them. अगर आप रिपोर्टराइज भी करते हो केस को, कभी रिपोर्टराइज करके देखा है केस मैनुअली? तो उसमें फिक्स मेडिसिन आती हैं। जब भी आप देखते हो कुछ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आती हैं जो हर केस में आती हैं। कौन कौन सी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है जो रिपीटेडली आती हैं? आर्सेनिक आती है, सल्फर आती है, मेटाम्योर, नक्स वोमिका, सीपी आती है, पार्सेनिक आती है, लैकेसिस, लाइकोपोडियम। There are some medicines that are repeatedly coming in your prescriptions. तो क्या होता है कि जब आप मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं रूटीनली, जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं, आपके केस टेकिंग यू आर प्रेस्क्राइबिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट्स, then you will find that lot of common medicines that we call as polycrest medicines are coming in your practice. तो जब हमें 40-50 polycrest medicines ही देनी है, so what is the use of studying 250 medicines? क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? Because in every case those 40 to 50 medicines cannot cure your patient. हमारे पास में बहुत सारी मेडिसिन हैं। मेडिसिन के सिम्टम्स कैसे आते हैं? हमारे पास जो मटेरिया मेडिकास हैं उसमें सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं that have appeared during the drug proving on healthy conditions of both sexes, different age groups and various constitutions. So what is the definition of constitution? That was your homework yesterday. Yes. किसी ने देखा? Yes sir. बताओ निशा। Yes sir. जल्दी बता दे बेटा, what is constitution? जल्दी से बता दे बेटा, what is a constitution? Anybody can tell me the definition of constitution. मैंने देखा किसी ने देखा? याद ही नहीं रहता। Anyone, किसी ने भी, कोई भी देख के भी बता सकता है बेटा। कितने लोगों ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को? प्रिया डेफिनेशन बेटा। हाँ, एक के बता दो। कोई जल्दी से बता दो, वो कहेगा। Constitution is defined as the genotypic inheritance of an individual. Genotypic inheritance that is inherited in forms of genes and The physical makeup of his body, physical makeup, external appearance of the body, including its functional vitality, metabolic activity, reaction to the stimuli, and resistance to the infection. Very good. Next definition. Okay. और कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? दिस यू ऑलरेडी नो कि आपका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जो आपका फिजिकल मेकअप है, दैट इज अफेक्टेड मोर और लेस बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स to those stresses of environment constitutes your constitution.
तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पे ड्रग प्रूविंग की गई, उसमें हमें सिम्टम्स मिले। सोर्स बुक्स कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स बुक्स इन व्हिच द ड्रग प्रूविंग हैज बीन मेंशन्ड? मटीरिया मेडिका प्योरा इज वन ऑफ द बुक्स। कितने वॉल्यूम्स में है, कौन कौन से एडिशन में, याद है आपको? 2 volumes. मेडिसिन्स कितनी हैं उनमें, ये ध्यान है? टोटल मेडिसिन्स मटीरिया मेडिका प्योरा में कितनी लिखी गई है? हाँ बेटा, किसी को पता है? वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सोर्सेज ऑफ होम्योपैथी मटीरिया मेडिका, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स बुक्स के बारे में। ठीक है, सोर्स बुक्स के बारे में यहाँ भी आएगा, लेकिन डिटेल वहाँ पे हम लोग करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे सो दैट यू कैन नो। 30 और 37 दो वॉल्यूम्स में टोटल नंबर ऑफ 67 ड्रग्स की प्रूविंग बताई गई है दोनों वॉल्यूम्स में मिला के, 67 ड्रग्स। तो आप एक चीज देखिए, व्हेन एनिमल स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, he was practicing in the first volume, he has told about 30 drugs and then 37 or vice versa can be there, but सिर्फ इतनी सी मेडिसिन से भी उन्होंने इतना नेम और फेम हासिल किया। और जबकि हम लोग इतनी सारी मेडिसिन की नॉलेज रखते हुए भी वी कैन नॉट इवन ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। प्रूविंग में सिम्टम्स कैसे लिखे जाते हैं, देखिए किसी ने सोर्स बुक खोल के देखिए बेटा, मटीरिया मेडिका प्योरा खोल के देखिए हो, या और कोई सोर्स बुक कभी लाइब्रेरी में है आपके पास, है ना, जस्ट ट्राई टू ओपन दोस बुक्स। होम्योपैथी को बताया जाता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन देने के बाद में कौन से दिन कौन सा चेंज आएगा, पता है आप लोगों को? कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम इन अ पेशेंट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग? एग्जैक्टली, ड्रग प्रूविंग में अगर आप देखोगे ना, आज कोशिश करना बेटा मटीरिया मेडिका प्योरा, मैं रोज बोलता हूँ, आप रोज यस सर बोलते हो, एंड देन जैसे ही यहाँ से निकलते हो सब खत्म। लाइब्रेरी जाना, जस्ट मटीरिया मेडिका प्योरा के 2 वॉल्यूम्स देखना। नई लाइब्रेरी जाते हो तो नेट से डाउनलोड कर लेना, ओल्ड एंड फॉरगॉटन बुक्स पे मिल जाएगा आपको, या फिर इन जनरल भी आप डालोगे मटीरिया मेडिका प्योरा PDF, तो यू विल गेट द PDF फ्रॉम इंटरनेट एज वेल। तो उसमें मेडिसिन देखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में मेडिसिन के बारे में बताया गया है कि किस इंडिविजुअल को मेडिसिन दी गई है, कितने टाइम में कौन सा सिम्टम डेवलप हुआ। सो व्हेनेवर अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, और पहले के लोग पता है कैसे, पहले रिपोर्टराइजेशन नहीं हुआ करता, कैसे लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे, कैसे देते थे बेटा? जो होम्योपैथ्स थे, है ना, तो वो किस तरह से मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया करते थे। आज तो हमें पता है मेडिसिन याद है, वो इतना आसानी से, जितना इजीली आप लोग बोल रहे हो ना, आज अगर हम देखते हैं होम्योपैथी इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस। तो उन लोगों ने सोचो कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। आज अगर आप रिजल्ट ना भी दो तो कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है होम्योपैथी में ऐसा होता है वैसा होता है, बट पीपल नो अबाउट होम्योपैथी। बट दोज पीपल, दोज स्टॉलवर्ड्स, हम स्टॉलवर्ड्स बोलते हैं ना उनको, जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी, वो कैसे किया करते थे? वो केस लेते थे एंड देन जो आपकी सोर्स बुक है ना, उनको कवर से कवर वापस रोज पढ़ा करते थे, कई बार। क्यों पढ़ते थे? कि जैसे सिम्टम्स है, सिम्टम्स लिखे, जो हम रिपर्टराइजेशन में करते हैं ना बेटा, रिपर्टराइजेशन में तो हमारे पास रिपर्टरी आ गई है, ठीक है, तो रिपर्टरी में तो हमारे पास ऑलरेडी सारी मेडिसिन लिखी हुई है। तो रिपर्टरी में आई कहाँ से? जैसे सपोज आपने हेडेक लिखा, हेडेक वर्स बाय लाइंग डाउन, हमारे पास में लिखा है इतनी सारी मेडिसिन है जिसमें है हेडेक वर्स बाय लाइंग डाउन। तो कैसे पता चला हमें? एक एक मेडिसिन, एक एक पन्ना पलट पलट के लिखा गया है कि कहाँ पे कौन सा सिम्टम लिखा हुआ है, और उसको नोट डाउन किया गया। आज आपको लगता है कि सर 1 घंटा रिपोर्टराइजेशन करने में लगता है, उस टाइम सोचो पूरी की पूरी बुक के पन्ने पलटने हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, रोज़ के रोज़ पढ़नी है, हर एक केस को ठीक करने के लिए बार बार पढ़ना है, सिम्टम को ढूंढना है कौन कौन सी मेडिसिन में है, बार बार पढ़ना है, तब जाके कहीं एक पेशेंट की मेडिसिन निकल के आती है। इतनी मेहनत करते थे वो लोग, कभी सोचा? नहीं सोचा, हाँ सोचा। तो आज कोशिश करना एक सोर्स बुक को बस पलट के देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारी जो होम्योपैथिक सोर्स बुक्स है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमारी जो कैंट रिपर्टरी वो इसके ऊपर बेस्ड है, कौन सी? ये जितनी भी रिपर्टरीज हैं, these are based on some or the other material medicals, जिनको सोर्स से लेकर, जिनको सोर्स मानकर और वो रिपर्टरी बनाई गई है। Which is the best repertory to be used by a physician? Name the best repertory
that can be used by a physician for getting best results? The best repertory for any physician to get wonderful result, to get successful result, is the one that the physician makes by himself. ये चीज आपकी रिपोर्टरी में लिखी हुई है, और दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड इन योर वाइवा वॉइस एग्जाम. आप अपनी प्रैक्टिस को आप पढ़ के जो रिपोर्टरी खुद से बनाते हो ना, दैट इज द बेस्ट रिपोर्टरी. कैंट ने जो रिपोर्टरी बनाई वो आप लोगों के लिए थोड़ी ना बनाई. That was not made for you people. The repertory was made by Dr. J.T. Kent for himself, for his own practice. ऐसे ही जितनी भी रिपोर्टरीज हम पढ़ते हैं वो उन फिजिशियंस ने अपने लिए बनाई. आप नोट्स बनाते हैं ना, और उसके बाद दूसरे ले जाते हैं, तो वो नोट्स क्या आपने दूसरे के लिए बनाए थे? हाँ, वो नोट्स तो आपने अपने लिए बनाए थे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए थे, अपने खुद को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए बनाए. ऐसे होता है ना? नहीं होता? तो ऐसे ही जो रिपोर्टरीज बनाई हैं जितने भी फिजिशियंस ने, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए वो रिपोर्टरीज बनाई हैं, और उनको चुरा लिया गया, उनको दूसरों ने ले लिया, उनकी बुक्स छाप दी और आप लोगों तक पहुंचा दी. तो ताकि आपको वो सारी मेहनत नहीं करनी पड़े जितनी उन लोगों ने करी. सबको जीरो से शुरू नहीं होना. सो ऑलवेज लुक फॉर द सोर्स ऑफ मटेरियलिटी. व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स विद यू टुडे, बिकॉज जब भी आपको मेडिसिन पढ़नी होती है तो आप एक पर्टिकुलर मेडिसिन को कई बुक से पढ़ें. कैंट लेक्चर्स पढ़े आप में से किसी ने? कैंट लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथी मटेरियल मेडिका नहीं पढ़े? उसको कैंट लेक्चर्स क्यों कहा जाता है? Kent lectures of our homeopathic materia medica. Why it is called as Kent lectures? बेटा जब कैंट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, वो जो नोट्स हैं उनको कंपाइल करके उन्हें कैंट लेक्चर्स का नाम दिया गया. तो जो कैंट ने लेक्चर्स लिए ना क्लास में, तो वो सारा उनका कंपाइलेशन आप उसे पढ़ना, उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए, उन्होंने बहुत तरह से अच्छी तरह से समझाया था. तो वो बुक लिखने के लिए थोड़ी ना लिखा था, वो तो उनके लेक्चर्स थे. जैसे आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो ये तो हमारा लेक्चर है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स सिंपल. तो उन सबको कंपाइल करके, इसीलिए उसका नाम लिखा हुआ है कैंट लेक्चर्स ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. तो जो कैंट के लेक्चर्स थे, क्योंकि कैंट ने सिर्फ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका नहीं पढ़ाई, कैंट की फिलॉसफी भी है ना, और भी आपको चीजें मिलेगी. कैंट की रिपोर्टरी भी है. तो कैंट लेक्चर्स ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, क्योंकि लेक्चर्स तो उन्होंने फिलॉसफी में लिखी. कैंट फिलॉसफी की क्या नाम है पूरा? What is the name of the book of Kant philosophy? आप पढ़ते हो ना कैंट क्लॉज रॉबर्ट, तो कैंट की बुक का क्या नाम है? उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी बाय कैंट. तो इसलिए ये बताया गया जो भी लेक्चर्स जो वो लेते थे, क्योंकि हमारे तीन सब्जेक्ट्स हैं जो होम्योपैथी को बनाते हैं या होम्योपैथी के बारे में नॉलेज हमें रखनी होती है. मॉडर्न मेडिसिन में जो पहले के लोग थे, जैसे हैनेमन की बात करते हैं, सो हैनेमन वाज बेसिकली व्हाट, वो फिजिशियन ही था. तो उनको बाकी अलाइड की तो पूरी नॉलेज थी ही सही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन और रिपोर्टरी तो बनाई है ना बेटा. कौन कौन से? हाँ, 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 की नॉलेज होगी. रिपोर्टरी तो मटेरिया मेडिका से निकल के आती है. होम्योपैथिक फार्मेसी जिसमें कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन होता है, बिकॉज होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न मेडिसिन. सो वी हैव फार्मेसी, वी हैव ऑर्गेनम जिसमें कि फिलॉसफी आती है, और मटेरिया मेडिका. these three things की उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती थी, जिस वजह से वो होम्योपैथी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते थे. फर्स्ट ईयर के बाद हमको फार्मेसी छोड़ ही देते, हमें तो रेडीमेड दवाइयाँ मिल जाएंगी, हमें क्या समझ. So let's start with the sources, है ना, ये तो थक जाओगे आप लोगों से कितना सारा बताते हैं. So sources of materia medica, we will be talking about 12 to 13 source books. ठीक है, sources, this you all know कहाँ से symptoms हमारे पास में आए हैं in the materia medica. These are the different sources from which you can get the symptoms written in your different types of materia medica. So the sources includes proving on the healthy human beings, proving on the lower animals. Alright, because
होम्योपैथी इज इक्विवेलेंटली अप्लाइड ऑन एनिमल्स, जिसको हम लोग वेटरनरी होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस भी लिखी हुई हैं। कौन सी बुक है जिसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं? क्लार्क, वेरी गुड। कितने वॉल्यूम में आती है क्लार्क? बहुत बड़ी वॉल्यूम्स आती हैं है ना। सो उसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस कैसे? बेड साइड ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को हॉस्पिटल में क्या क्या दवा दी गई, उसमें किस तरह से क्या रिजल्ट मिला, वो सब चीज़ें। होम्योपैथी में बहुत वास्ट चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं। हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? एलेंस पढ़ लिया, सुबह पढ़ लिया, ज़्यादा वर्ड पढ़ लिया, बस, है ना। तो आदत डालो लाइब्रेरी में जाने की, थोड़ा सा बुक देखने की। क्या है बेटा? है गई? Clinical observation, accidental sources. What are accidental sources? जैसे ब्लड हो गया, जैसे ना एक्सीडेंटली आपने किसी ड्रग को प्रूव कर लिया, है ना। एस्थमा में कॉकरोच गिर गया, आपका चाय में कॉकरोच जो भी था कॉकरोच ने गिर के कमाल कर दिया ना। Now we have toxicological sources, different type of toxicological sources like नाजा, है ना, स्नेक पॉइजन्स होते हैं, वेनम्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, जो कि टॉक्सिकोलॉजिकल, उन सोर्सेज से हमें पता चला क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूविंग करेंगे। केमिकल सोर्सेज, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। देन एम्पिरिकल सोर्सेज, व्हाट आर एम्पिरिकल सोर्सेज? हिस्टोरिकल। हां बेटा, हिस्टोरिकल जो दादी नानी के नुस्खे जो चल रहे हैं ना अपने सीडीए टिकट्स के लिए, वो सारे एम्पिरिकल सोर्सेज है ना। दीस आर द एम्पिरिकल सोर्सेज फ्रॉम व्हिच सोर्सेज ऑफ मटेरियल मेडिकल हैव बीन प्रूविंग ऑन प्लांट्स। सो प्लांट्स के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एग्रो होम्योपैथी के नाम से अभी ट्रेंड चल रहा है पूरा। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, दिस यू ऑल नो। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कैसे? उसी की जैसे आई का शेप बन रहा है किसी में, तो वो आईज के लिए हेल्पफुल है। Now different types of materia medica we are going to discuss. First of all, systemic materia medica. Systemic और schematic materia medica. Schematic में क्या होता है? Symptoms in a set performer. ठीक है, जो symptoms arrange होते हैं वो set performer में होते हैं, set schema में होते हैं। क्या चीज़ होती है यहाँ पे? The symptoms of the medicines are arranged in schematic manner from above downwards, है ना। जैसे कि एनिमल्स की मटेरिया मेडिका प्यूरा जो है उसमें ऐसे ही सिम्टम्स डाले गए। जब आप खोल के देखोगे then you will find the symptoms arranged from head to toe, है ना। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसमें भी इसी तरह से कुछ होता है। Chronic diseases and their peculiar nature with their homeopathic care by Dr. Hahnemann, Encyclopedia of Pure Materia Medica by A.F. Hahnemann, ये source books में आती है। Guiding symptoms of our homeopathic materia medica by C. Hahnemann, कौन है ये? इन्होंने 10 वॉल्यूम्स में दिया है। एक बार देखना, आप जब तक स्टूडेंट हो, अभी फाइनल ईयर में हो, एक बार जितनी भी बुक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद सारी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में है, एक बार बस खोल के देखना, है ना। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, बट एक बार खोल के देखना, हाथ में लेके देखना कैसी फील होती है, ठीक है। बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट है स्कीमेटिक पैटर्न की? कि आपको पता है कि किस तरह से सिम्टम्स अरेंज होंगे। तो जब भी आपको ढूंढना होगा, मान लो सपोज हेड के सिम्टम्स हो, तो आप हर मेडिसिन में स्टार्टिंग में देखोगे, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज का है तो आप लास्ट में देखोगे। तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द सिम्टम्स इन अ पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है। दे आर सिस्टमैटिकली डिफरेंट अगेंस्ट ईच अदर, इजी टू रिमेंबर द सिम्टम, रेफरेंस कैन बी मेड इजीली। तो जब आपको कई सारी मेडिसिन को कंफर्म करना है तो आप इजी रेफरेंस से जल्दी से आपसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्विकली फॉर अ पर्टिकुलर सिम्टम एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉडी। ड्रॉबैक क्या है? इसमें कई बार हमारे वैल्यूएबल सिम्टम्स छूट जाते हैं क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द वास्ट सिम्टम्स। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है जिसमें कुछ ही सिम्टम्स काम किया लेकिन हम हेड टू सारे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस कई बार खो जाती है, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम किस चीज़ के लिए उसे काम लें। नाउ कीनोट मटेरिया मेडिका, इसको आप यूज करते हो एलएम की नोट्स। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका कंटेन्स ओनली द कीनोट फीचर्स ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। इसमें कीनोट्स होते हैं। कीनोट्स क्या चीज होती है बेटा? PQRS symptoms होते हैं, clear strain symptoms that represent a particular medicine। तो कई सारे फिजिशियंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीनोट पर ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन। नहीं डाला भूल गए, कोई बात नहीं। The red line symptoms of medicines which are characteristic of a remedy which includes Allen's keynotes by H.C. Allen,
Symptomatic key to MM by C.M. Boger. Boger's synoptic key. This is basically a repertory. Have you seen this? Yes, sir. Boger's synoptic key. Keynote and red line symptoms of Materia Medica by A.V. Lippe. This is also a very good book. Containing the red line symptoms and characteristics of homeopathic Materia Medica by M.E. Douglas. So these are the names of certain Materia Medica books. आज मैं आप लोगों को इतनी सारी बुक्स के बारे में बता दूंगा कि आप लाइब्रेरी में जाकर ढूंढना, है ना, थोड़ा सा जो सोर्स बुक्स है ना, आपको जो बहुत भारी सी बुक लगे जिसमें बहुत पुरानी बाइंडिंग हो उसे जरूर देखना, है ना. दोस विल बी द सोर्स बुक्स. बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें? टाइम सेविंग होता है, की नोट ही मिलता है आपको. कोई भी मेडिसिन चाहिए तो उसकी की नोट्स आपको याद हो जाते हैं. यू कैन रिमेंबर द की नोट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स ऑफ Materia Medica. The predominant symptoms which direct one's attention to the totality of symptoms. Just by looking at few keynote symptoms, you can directly know the picture of the disease and you can easily prescribe a particular medicine in the case of a patient, है ना. कुछ keynotes मिल गए, एक particular medicine का पता चला. जैसे हम लोग देखते हैं ना, chilly patient है, बिल्कुल highly sensitive to cold air, heavily sweating है और reddening अगर आ रही है, ठीक है, सिर से पैर तक कवर करके रखा हुआ है, तो chilly patient है, तो हीपर पे चले जाएंगे, है ना. तो की नोट्स हुआ, आपने सब कुछ नहीं पूछा. You have just asked 3 or 4 peculiar features and then you are directly jumping to that particular medicine. लेकिन इसका ड्रॉबैक भी होता है. इसकी वजह से क्या होता है? मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है. कई बार आप अपनी चीज़ें मिस भी कर देते हैं. Selection of symptoms is quick and easy to remember and reproducible. Means जब भी जरूरत है आपको कहीं से याद रहेगा symptoms. फार्माकोडायनामिक Materia Medica, है ना, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पता चलता है. हाउ द मेडिसिन एक्ट. A Manual of Pharmacodynamics by Richard Hughes, है ना, एक इंपॉर्टेंट बुक है. एंड लेक्चर्स ऑन Materia Medica by Carol Dunham. ठीक है, ये कौन सी है? फार्माकोलॉजिकल Materia Medica that tells you the pharmacological action of a particular medicine. जैसे जेलिडोनियम का एक्ट करती है, मोस्टली लिवर मेडिसिन है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से होता है हमें पता चलता है. Richard Hughes Pharmacodynamics have covered all the aspects of homeopathic starting sources of Materia Medica, principles of drug action, how the drug acts, and what is homeopathy, and also stated about the preparation, how to prepare the drug, the selection of potency and the repetition, that is posology. He has told everything about homeopathic posology of a particular drug. The Hughes has also stated in the sphere of action of the drug, what is the sphere of action, कौन से ऑर्गन पे, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन एक्ट करती है और उसका एक्शन किस तरह से रहता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से चेंजेस करना पड़ता है. ठीक है. According to him, every medicine, even though it is a great polymerist, has one or more center of action. चाहे कितनी भी polymerist medicine क्यों ना हो, हर medicine का एक particular sphere of action होता है, एक particular organ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा affinity होती है. ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे बताने की कोशिश करी. The centers sometimes from the pathogenic, sometimes from the clinical side. कभी कभी pathogenic side से, कभी clinical side से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है. बेनिफिट क्या है? ये आपको बताता है कि किस तरह का उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है और उस तरह से जब आपको कोई ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज आती है तो आप उस मेडिसिन को याद करके इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. ठीक है, याद भी आसानी से हो जाती है और आराम से रिप्रोड्यूस भी हो जाती है. मतलब जब जरूरत है तो आपको उस फार्माकोलॉजिकल एक्शन से मेडिसिन के बारे में जल्दी से याद आ जाता है. नाउ Materia Medica ऑफ दिस इज फिजियोलॉजिकल एक्शन. ठीक है, ये भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल एक्शन को बताती है. Characteristic of Materia Medica by D.C. Dasgupta and William Bird. So Bird in the Materia Medica has complete information about the drug. इन्होंने भी पूरी की पूरी मेडिसिन ड्रग के बारे में लिखी है एंड क्या बताया है, कहाँ से मिली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ड्रग. जो आप ढूंढते हो ना कि हमें सोर्स कैसे पता चलेगा, कौन सा पार्ट उसका यूज किया जाता है. ठीक है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेडिसिनल यूज, हाउ इट एक्ट्स अपॉन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करेगी, क्या क्या चैनल है, किसके थ्रू जाएगी, एंड व्हाट टिश्यूज. ये पिछले वाले से कुछ रिलेटेड है जो हमने यहाँ लिखा था ना फार्माकोडायनामिक, लेकिन यहाँ पे फार्माकोडायनामिक एक्शन लिखा गया पूरा पूरा, ना फिजियोलॉजिकल एक्शन लिखा गया. ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जब बुक पढ़ोगे तो समझ आएगा. इसलिए आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, है ना. ये भी देखो, वो भी देखो, जो हाथ में आ जाए बस बुक देखा करो. ठीक है, याद तो उसी से करना है जो आप पढ़ते हो, है ना. लेकिन आप लोगों को बस एक नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज जब आप पास आउट हो जाओगे ना यहाँ से तो आपके मन में रह जाएगा कि काश हमने वो बुक एक बार देखी होती. ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं. तो आपके पास लाइब्रेरी में यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, जस्ट गो थ्रू दिस बुक्स वंस. ना Materia Medica की बुक्स हमेशा एक बार देखो कौन कौन सी बुक्स हमारे पास में है और क्या क्या है. They act upon the human organism. What tissue it specially acts upon, कौन से टिश्यू पर काम कर रही है,
हाउ मच इट अफेक्ट्स इट, कहाँ तक का एक्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्कोप क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है। एक होम्योपैथ हमेशा होता है कोई सा भी केस ले आओ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन बताता है कि कौन से लेवल तक आप किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई केस हमारे पास आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ तक चेंजेस आ गए, तो हमारी मेडिसिन उसको ठीक करेगी, कौन से लेवल के बाद में, क्योंकि स्कोप और लिमिटेशन आपके ऑर्गेनल में टॉपिक आता है, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए हमारा स्कोप क्या है, हमारे लिमिटेशन। तो ऐसे कोई डिजीज अगर हमारे पास में आ रही है तो वी शुड नो टिल व्हाट एक्सटेंट वी कैन टेक द केस, वी कैन प्रोड्यूस इंप्रूवमेंट इन द केस, और कहाँ तक नहीं आ सकता। तो यहाँ पे उसको बताया गया है हाउ मच इट अफेक्ट्स देम, हाउ मच ऑफ द ड्रग इट टेक्स टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक थेरेप्यूटिक्स। तो यहाँ पे भी थेरेप्यूटिक बेसिस पे चलेंगे, thus giving the pharmacological and pathological action of the drug upon the healthy human beings. ड्रग प्रूविंग कहाँ तक की जाती है, कौन से लेवल तक की जाती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, इस एक्शन को देखने के लिए ये ड्रग प्रूविंग में पढ़ा है बेटा आपने। पैथोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते तो फिर ड्रग पे रोक दी जाती है, तब रोक दी जाती है। तो एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस तक नहीं देखी जाएगी, इतना ही लेवल में है। तो अगर एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस को देखना है तो फिर आपको क्लिनिकल देखना पड़ेगा, जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका हमारे पास में है, ये आपको क्लिनिकल मटेरिया मेडिका बाय ए फेरेंटन, ये तो छोटी सी बुक आती है, ये फेरेंटन देखी है आपने, ऐसे कवर होता है। नहीं सर, मोटी है ये भी। मोटी है? हाँ। देखना बेटा, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका बाय ए फेरेंटन, अलग-अलग है। ये फेरेंटन इज द ऑथर, उसने कई सारी बुक्स लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फेरेंटन की बुक मोटी है कि छोटी है। कौन सी बुक की हम बात कर रहे हैं, है ना? बीएचएमएस के स्टूडेंट इतने बड़े-बड़े हैं, अरे कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? बीएचएमएस 4th ईयर में कौन सा स्टूडेंट? तो ये फेरेंटन में तो बहुत सारी बुक्स लिखी है, आप कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? ठीक है, दिस इज इट। पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रिपोर्टेड बाय विलियम बोइड। बेनिफिट्स क्या है? अ क्विक सिलेक्शन, अगर आपको क्लिनिकल मटेरिया मेडिका आपके पास है, डिजीज का नाम मिला, मेडिसिन कौन सी दे दो, ठीक है। सो क्विक सिलेक्शन ऑफ द ड्रग कैन बी मेड एज द मेडिसिन आर कंपेयर्ड विद द क्लिनिकल एस्पेक्ट। क्लिनिकली कौन सी मेडिसिन क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी डिजीज में काम कर रही है, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट आप जल्दी से कंपेयर करो और दे दो। जब आप इसमें देखोगे ना पेरेंटल में, उसमें कंपेयर कर करके टेबल्स बना के दिखाया है, बस पेजेस पर रख के देखना, चीजें क्लियर हो जाएगी, कैसे बताया हुआ है। Carrington has given kingdom-wise study of Materia Medica, making it useful approach. तो plant kingdoms होते हैं, कई सारे kingdoms होते हैं, रोशनी मिलता नहीं है, तो plant kingdoms होते हैं, कई सारे kingdoms। तो kingdom-wise आपकी जो family होती है, family की कुछ common characteristics होते हैं, Yes. तो वो चीज़ बताई गई है। क्या बात है बेटा, तुम्हारे क्या चल रहा है वहाँ पे? In the starting of each lecture, Carrington has given a flow chart which gives action. जब आप उस बुक को देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में उसने फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है। क्या चीजें समझाई हुई है? एक्शन, रिलेशन एंड अदर थिंग्स इन रिलेशन अबाउट द रेमेडीज अंडर कंसिडरेशन। जो भी रेमेडीज हैं, उनका एक्शन समझाया गया है, उसके रिलेशंस बताए गए हैं और कौन-कौन सी मेडिसिन से रिलेट करती है उनको बताया गया है। ड्रॉबैक क्या है? इसमें कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती, इसमें सिर्फ उतना ही आपको दिखता है जितना कि बताया गया है ना। तो ये ड्रॉबैक यहाँ पे बताया है। थेराप्यूटिक मटेरिया मेडिका, थेराप्यूटिक तो स्पेशली पढ़ते हो ना, लिलियंथल थेराप्यूटिक्स है ना, दीवे और नैश लीडर्स होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, ये सोर्स बुक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी आती हैं जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड करती हैं, दोस आर नॉट सोर्स बुक्स बट दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स बुक्स, जिनसे कि बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि सर्जरी की थेराप्यूटिक्स, ऑब्स्टैनिक थेराप्यूटिक्स ना, वो सब उनका मैटर इन्हीं बुक्स से लिया गया है, ठीक है। दीवे है, लिलियंथल है एंड नैश लीडर्स। इसमें क्या होता है? हियर द ड्रग्स आर स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ डिफरेंट नोसोलॉजिकल डिजीज। हेडेक की कौन-कौन सी डिजीजेस हैं ना, कॉलिक की कौन-कौन सी डिजीजेस हैं, कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन-कौन सी मेडिसिन आएंगी, ऑल दीज डिजीजेस आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ देयर डिजीज। ये आप जानते हैं थेराप्यूटिक मटेरिया मेडिका। बेनिफिट्स क्या होते हैं? डिजीज का नाम बताओ, मेडिसिन का नाम बताओ, है ना। सॉफ्टवेयर बन गए, डिजीज का नाम डालो, फिर तो बाकी सब कुछ बता देगा। फिर आपकी जरूरत क्या है? फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए। It reduces the choice of remedy to a limited number। बहुत थोड़ी सी मेडिसिन में से ही आपको
सिलेक्ट करना होता है। कितनी थकान हो गई सबको आज? 10 मिनट है निकालो। It directs our attention towards the rare remedies with lesser number of symptoms that give a very good result. Suppose कोई एक पेशेंट आपके पास आया है हेमरॉइड्स का, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ठीक है। अब आपने पूरा का पूरा केस ले लिया, यू हैव टेकन अ कंप्लीट केस, सब कुछ आपने देख लिया, है ना। मेडिसिन कौन सी आ रही है? सपोज नाइट्रिक एसिड आ रही है, नाइट्रिक एसिड से आराम नहीं आया, ठीक है। सपोज इपिकैक, अगर ब्राइट ब्लड है तो इपिकैक आ गया, डार्क है तो नाइट्रिक एसिड भी ब्राइट के लिए, हेमामेलिस दे दिया आपने डार्क ब्लड के लिए, या और कोई मेडिसिन, पर हेमामेलिस वगैरह आती नहीं है यूजुअली रिफर्टराइजेशन, ठीक है। अब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब आपको कुछ रेयर मेडिसिन चाहिए। रेयर मेडिसिन जिनका कि स्पेसिफिक एक्शन होता है, जैसे कौन सी? ब्लीडिंग हेमरॉइड्स के लिए रेयर मेडिसिन बताओ बेटा। फॉस्फोरस पॉलीक्रेस्ट, ये भी पॉलीक्रेस्ट में आती है। हैव यू हर्ड अबाउट ब्लूमिया ओलोरेटा? ब्लूमिया। हैव यू हर्ड अबाउट पियोनिया? So these are some medicines. In the similar way, we have lot of medicines that are lesser known medicines but have wonderful action on a particular disease condition. ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि लेसर नोन होती है। जैसे सपोज अभी कोराइजा चल रहा है ना, जुकाम का सीजन चल रहा है, इलेक्ट्रोमाइग्रेटिस फीवर, तो आप लोग सब आर्सेनिक एल्बम की बात करते हैं। बट हैव यू हर्ड अबाउट एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिफोलिया? This is a very good medicine for the condition like hay fever, coryza, nasal discharge. So these are the lesser known medicines that are having wonderful action on your body. बहुत अच्छा काम करती हैं और कम लोग जानते हैं, तो इनकी नॉलेज हमें थेराप्यूटिक मटेरियल में मिलती है, जिसके अंदर हम लोग लेसर नोन मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई दोस मेडिसिन फॉर द रिलीफ ऑफ द सिम्पटम्स। 6 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे ना। देयर आर 12 पॉइंट्स। So have you understood this topic today? Yes, sir. So this session was powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you have understood this lecture. If you have any doubt, please mention in the comment box and I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. Have a good day.